Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you the second types for the Charpit method and today's lecture name is Clairaut's equations. I will explain you with the help of more than 10 examples in this video. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equation. आप देख पा रहे हो type 1 Charpit methods, compatible equations and many more lecture already available in this playlist. As I have discussed you how you can solve the partial differential equations by the Charpit method, I have discretized into the 5 different categories. Type 1 is which I already explained you. You can see the last lecture examples of the Charpit methods. Type 1. Type 1 में वो सारी इक्वेशन थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन जो है वो P और Q पे डिपेंडेंट हो. फाइन. और इस लेक्चर में मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई थी CSR नेट और गेट के रिगार्डिंग. Type 2. Today I will explain you the 10 plus examples related to the type 2. And the type 2 is a very special form. Whenever the equation is of the form z is equal to px plus qy plus function of the p and q. और ये फंक्शन आपका लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है. फाइन. इट मे बी लाइक p प्लस q भी हो सकता है. इट मे बी लाइक साइन इनवर्स p q हो सकता है. इट मे बी लाइक साइन ऑफ p प्लस log of pq and so on. कुछ भी फॉर्म का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल you can see all these examples. Px plus qy 2p minus, there's a function of the p and q. Similarly the function of the p and q, p square minus q square is a function of the p and q, sine is a function of the p and q and so on. Fine. So type 2 I can code as a Clairaut equation form. What is the form of the Clairaut? This is any equation which of the form z is equal to px plus qy plus f of p comma q. That equation is called as the Clairaut's equations. अब टारगेट हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन निकालना. सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दे देता हूं जो आपको CSR नेट और गेट के लिए काम आएगी. फाइन. और उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल में भी बता देता हूं. फाइन. जब भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो क्लैरिस फॉर्म है, यू कैन रिप्लेस P टू बी द A और Q टू बी द B. इस इक्वेशन में जहां पे भी P लिखा हुआ वहां पे A रिप्लेस कर दो और Q की जगह पे B रिप्लेस कर दो एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. फाइन. जैसे मैं अगर इस एग्जांपल पे चलूं, कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम. कितना आ जाएगा? इट्स अ क्लैरिस इक्वेशन. AX प्लस BY minus 2A minus 3B. Fine. Similarly, can you find the solution of this sign? That will be Z is equal to AX plus BY minus sine of AB. Fine. बाकी किसी भी फॉर्म को आप लिख लो. That is the answer in just the 5 seconds. But अगर आप इसको थ्योरी एग्जाम में चलना चाहते हो तो how we can find that? I can write F is fine. So I can start with the Charpit auxiliary equation. फाइन. और इसका प्रूफ आपको कहां मिलेगा इस चारपीट इक्वेशन का? यू कैन फाइंड माय चारपीट मेथड फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब आप इसके अंदर आपको क्या चाहिए? एक fx चाहिए. कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द fx? fx मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द f विद रिस्पेक्ट टू p. कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ x माइनस f प्राइम ऑफ p कॉमा q. f of q, partial derivative of f with respect to q, f prime p comma q. I can substitute all these fx fy in my given auxiliary equation. So that will be dp over fx कितना है? minus p plus p into fz plus p. Similarly we can see dq minus q plus q and so on. Fine. तो आपके पास equation बन गई this one. So clearly say dp over 0, that means dp is equal to 0. You can integrate on the both side, you will get p is equal to a. Similarly from the second, dq is equal to 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, then q is equal to b, where a and b are my arbitrary constants. Substitute the value of the p and q in the given partial differential equations, you will get the required complete integral solution. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी आपको क्लैरिस फॉर्म दिखाई दे जाए, यू कैन रिप्लेस
P to be the A and Q to be the B. Another important thing is whenever the statement mention that solve the partial differential equation, then your target is to calculate the three different kind of the solutions. The first solution is known as complete solution, or someone is called as a complete integral. Similarly, for the second one is the singular integral and the third one is the general integral. फाइन. कभी भी आपको सिंपल ये कह दिया गया कि सॉल्व दी पार्शियल डिफरेंशियल, तो आपको ये तीनों सॉल्व करने हैं. इन तीनों की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विद एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको अप्लाइड कर चुका हूं. सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइन, तो आप सुन सकते हो, 10-15 मिनट का लेक्चर होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं. भी जब कभी भी आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल हो, सबसे पहले आप जेड की वैल्यू निकालिए इस तरह से. इसमें तो ऑलरेडी दे रखी है ना. फाइन, अगर मान लो ये इक्वेशन कुछ ऐसे दी होती, फाइन, विच इज इक्वल टू वाई प्लस पी, तो सबसे पहले आपको जेड की वैल्यू निकालनी थी. क्यू से मल्टीप्लाई करते, पी एक्स को दूसरी तरफ लेके जाते. फाइन, अब पहले ये चेक करते हैं क्या ये क्वेश्चन टाइप 1 मेथड से सॉल्व हो जाएगा. टाइप 1 से कौन से क्वेश्चन सॉल्व होने थे? जिसमें सिर्फ और सिर्फ P एंड Q होगा, लेकिन यहां तो X भी लिखा हुआ है और Y भी लिखा हुआ है, मोरओवर Z भी लिखा हुआ है, तो ये टाइप 1 से तो सॉल्व नहीं होगा. टाइप 2 से सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जिसमें आपको कहीं ना कहीं पे PX और QY दिखाई दे जाए, दोनों पॉजिटिव साइन के. तो आपको दिखाई दे रहा ना ये, इसका मतलब दिस इक्वेशन इज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टाइप 2 एंड दे आर मेंशनिंग द सॉल्व. इट मींस आपको 3 सॉल्यूशन निकालने होंगे. फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन की. द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इज माय क्लेरेस्ट फॉर्म. तो इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? यू कैन रिप्लेस स्मॉल p टू बी द a and q to be b, and that is my required complete integral solution. सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है? इट्स वेरी वेरी सिंपल. यू कैन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 partially with respect to a and b. Make sure students, singular solution का मतलब है आपको z की वैल्यू निकालनी है which must be free from a and b. फाइन, a और b से फ्री होना चाहिए. तो आप पार्शियल डेरिवेटिव करो इसका. a के साथ लेफ्ट हैंड साइड इज 0, राइट हैंड साइड इज a के साथ x प्लस b, और y के साथ करेंगे 0, b के साथ करेंगे तो 0, y plus a. So can you find the value of the a and b? A will be my minus y, b is equal to minus x. Substitute the value of the a and b in equation number 1. So you will get minus xy minus minus plus xy. Xy and xy will be cancelled. Therefore, z is equal to minus xy is the required singular solution. And the last one is a general integral. फाइन, इसमें भी आपको z की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट नहीं करना. यू हैव टू राइट ईदर phi as a function of the a, b as a function of the a और a as the function of the b. आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप. where phi is my arbitrary function. ये कोई भी फंक्शन हो सकता है. इट मे बी साइन, इट मे बी लॉगरिथम, इट मे बी एक्सपोनेंशियल, इट मे बी नॉन लीनियर एंड एनीथिंग. फाइन, so I can take b is equal to phi of a, substitute the value of the b is equal to phi of a in equation number 1. Now you can see there is a one parameter family, सिर्फ a पे रह गया ना. You can differentiate partially with respect to a. तो कितना आ गया? लेफ्ट साइड 0, that will be x plus phi prime of a into y. You can apply the product rule. First function, fine, plus a of phi dash of a. I call this is my equation number 3. Now because आपके पास phi तो given नहीं है, तो आप इसमें से eliminate नहीं ना कर सकते. So general integral is obtained by eliminating the value of the a from equation number 2 and equation number 3. So सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दो, because आपके पास phi की exact function given नहीं. चलिए look at the next one. सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंटीग्रल बोला है. क्या ये टाइप 1 से सॉल्व होगा? यस एवरीबॉडी? नो, बिकॉज आपको सिर्फ और सिर्फ p और q चाहिए, लेकिन यहाँ पे x और y भी है. चलिए सबसे पहले z की वैल्यू निकालते हैं. तो z कितना हो जाएगा?
पहले तो स्केयर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्केयर रूट, फाइन, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर. So that implies z will be px प्लस क्यू वाई, और ये भी प्लस माइनस ही रह जाएगा ना इधर आके भी, और माइनस प्लस लिख दो, दैट इज द सेम थिंग. फाइन. अब आप देखो टाइप 1 तो फेल हो गया, बट px प्लस क्यू वाई लिखा हुआ है एंड दैट इज अ फंक्शन ऑफ द कांस्टेंट. So that is the equation of the Clairaut's form. I can replace p to be the a and q to be the b is the required complete integral solution. अगर आपसे इस क्वेश्चन में सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ लिया जाता तो कैसे करते, इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर देते पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और फिर उसकी ए और बी की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूशन करते हैं. लुक एट द नेक्स्ट वन. Now you can see there is a value of the complete and the singular. Fine. Clearly say that type 1 is not applicable. Fine. Why? Because the function of the x and y is also given. Type 2 applicable है, yes, because px और qy लिखा हुआ है. Then complete solutions, which is a Clairaut's form. Fine. I can replace the value of the p to be the a, q to be b. Singular solution के लिए I can differentiate 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. तो पहले ए के साथ करते हैं लेफ्ट साइड 0, दैट विल बी x, y विल बी 0, log का डेरिवेटिव 1 ओवर ए बी इंटू ए के साथ करेंगे तो b, दैट इज 1 ओवर ए. सिमिलरली b के साथ करेंगे y प्लस 1 ओवर b. तो कितना आंसर हो गया, a विल बी माइनस 1 ओवर x एंड b विल बी माइनस 1 ओवर y. I can substitute both the value of the a and b in equation number 1. So that will be minus 1 plus log of ab. Fine. So that is my minus of 2 plus log of 1 over xy. और आप इसको ये भी लिख सकते हो minus of 2 log of xy. Log m over n की प्रॉपर्टी लगा दी मैंने. So you will get minus 2 minus log xy is the right answer of the singular solution. चलिए जर्नल इंटीग्रल पूछा नहीं है, बट इफ यू वांट देन आई कैन राइट फॉर यू. यू कैन टेक b एज अ फंक्शन ऑफ द phi, substitute in the equation number 1. फाइन. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a. a के साथ डिफरेंशिएट करेंगे x, a विल बी phi dash of a into y into 1 over a phi of a into 1 of phi a plus a into phi dash of a. Now you can call as equation number 3. Eliminate a between the 2 and 3. You will get the required journal integral. चलिए look at the next one. Prove that the complete integral of the surface of the partial differential representing the possible plane. और उसके बाद क्या बोला है, इनवेल्प निकालो. इनवेल्प का मतलब सिंगुलर इंटीग्रल. सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्या टाइप 1 पॉसिबल है इस केस में? नहीं है, बिकॉज द फंक्शन एक्स एंड वाई ऑल्सो अपीयर्स. क्या ये टाइप 2 है आपके पास? यस. फाइन. तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 2a माइनस 3b. क्लियरली से इक्वेशन नंबर 1 इज माई प्लेन. प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी. तो ये आपका कांस्टेंट हो गया. फाइन. ए एक्स प्लस बी वाई, जेड को लेफ्ट साइड पे ले जाओ या राइट साइड पे ले जाओ. फाइन. तो इक्वेशन नंबर 1 इज रिप्रेजेंटिंग माय प्लेन इन द एक्स वाई प्लेन. नाउ क्या ये इसमें से पास करेगा? हाउ यू कैन चेक दैट वेदर इट passes so that 2, 3, 0. I can substitute the value and check whether the left hand side is equal to right hand side or not. Z is my 0, x is my 2, y is equal to 3, minus of 2a minus of 3b. So clearly say 2a and 2 will be cancelled. So 0 is equal to 0. Yes, it passes through the given points 2, 3, 0. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है आपका, फाइंड द इनवेल्प ऑफ ऑल द प्लेन विच रिप्रेजेंटिंग बाय कंप्लीट इंटीग्रल. इनवेल्प का मतलब होता है बच्चों सिंगुलर इंटीग्रल. तो सिंगुलर कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू 1 और विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b. तो मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं, a के साथ करोगे तो x माइनस 2 और b के साथ करोगे तो y माइनस 3.
0 is equal to x minus 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3. Substitute the value of the x and y in the equation number 1. तो कितना हो जाएगा, ये 2a हो गया, 3b हो गया, सॉरी 2x, x की वैल्यू 2. फाइन. तो जैसे आप फिल करोगे यू विल गेट दी 0 is the required envelope और z is equal to 0 is the required singular integral. Proof that the complete integral represents all the planes such that algebraic sum of the intercept is my unity. सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x over a प्लस y over b प्लस z over c इज इक्वल टू 1. यही होते हैं ना इंटरसेप्ट फॉर्म. तो आपका टारगेट है पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना. किसको, कंप्लीट इंटीग्रल को. तो पहले कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे. अगेन यू कैन सी द टाइप 1 इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज x and y also present and clearly say px plus qy and the function is independent of the x and y. तो yes, it's my Clairaut's form. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, I can replace p to be the a and q to be the b. तो इसको पहले प्लेन की फॉर्म में लिख लेते हैं. आई कैन राइट ax प्लस by, z को इधर ले चलते हैं और इस वाली चीज को दूसरी तरफ ले चलते हैं. ab नीचे में माइनस से एडजस्ट कर दे रहा हूं. फाइन. तो आप देखो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x ओवर a, y ओवर b, z ओवर c इज इक्वल टू 1. तो राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, अगर मैं इस वाली चीज को a प्लस बी माइनस ए बी को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो यू विल गेट फाइन. ऐसे बनेगा ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊं. अब आप इससे कंपेयर करो, कैपिटल A कितना हो गया आपका, दैट विल बी b ओवर a प्लस बी माइनस ए बी. कैपिटल B कितना हो गया आपका, a ओवर a प्लस बी माइनस ए बी. और कैपिटल C कितना हो गया, माइनस ए बी ओवर a प्लस बी माइनस ए बी. और पूछ क्या रहे आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स. इसमें इंटरसेप्ट क्या आपके a, b एंड c. तो आपसे ये प्रूफ करने को वो कह रहा है. फाइन, दैट इज योर टारगेट. नाउ सिंस वी नो a, b एंड c, तो तीनों को ऐड कर दो. यू विल इजिली सी इफ यू ऐड देम, टेक द एलसीएम, a प्लस बी माइनस ए बी. So b plus a minus ab, clearly say it's 1, hence the required proof holds. Show that the complete integral of the equations represents a unit distance from the origin. सबसे पहले complete integral निकालते हैं. Again you can see that type 1 is not applicable. बच्चों चाहे मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए टाइप 3 लेक्चर की, टाइप 4, टाइप 5 की, सबसे पहले टाइप 1 को चेक करेंगे, फिर टाइप 2 को चेक करेंगे, फिर टाइप 3 को एंड देन सो ऑन. तभी तो आपको एग्जाम में पता लगेगा ना कि कौन सा मेथड कब लगना है. क्योंकि आपको एग्जाम में ये तो नहीं बताया होगा ना कि टाइप 2 मेथड से सॉल्व करिए आप. क्लियर. चलिए, तो ये आपके पास क्या है, अगेन px प्लस qy है एंड दैट्स अ फंक्शन ऑफ ओनली p एंड q. दैट इज माय क्लेरेट्स इक्वेशन. सो आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया, सॉरी कंप्लीट सॉल्यूशन. अब ये क्या कह रहा है, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो आप एक पॉइंट आपके पास है. फाइन. अब आप किसी भी प्लेन का यूनिट डिस्टेंस कैसे निकालते हो. अगर मान लो मेरे पास एक प्लेन है, मैं यहां पे लिखूं आपके लिए. अगर मेरे पास एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. इसका अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम एनी पॉइंट, से स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो आप कैसे निकालते थे, आप इसका ऐसे तो निकालते हैं ना, x की जगह पे a प्लस b प्लस c फाइन एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द x, कोफिशिएंट ऑफ द y, कोफिशिएंट ऑफ द, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे आप. तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे आपको पॉइंट क्या दे रखा है, ओरिजिन. तो पहले मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले जा रहा हूँ. फाइन. Equation will be ax plus by plus z and so on. Now you can find the perpendicular distance from the origin. तो करो, कितना आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, z will be 0 plus अंडर ऑफ a square plus b square plus 1 divided by coefficient of the x, coefficient of the y square, coefficient of the -1 का स्क्वायर plus 1. तो ये कितना हो गया आपका आंसर,
दैट विल बी 1, और यही बोला इन्होंने, शो दैट द कंप्लीट इंट्रागल इज अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए क्या इन दोनों क्वेश्चन पे किसी भी क्वेश्चन पे टाइप 1 एप्लीकेबल है? नहीं है, बिकॉज आपको दोनों में एक्स एंड वाई दिखाई दे गया। पहले पार्ट में जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड कितना आ गया? जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई विच इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस क्यू। तो जेड इज माई पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1 ओवर पी प्लस क्यू। आप देख सकते हो इट इज क्लियरली से इट दिस इक्वेशन इज माई क्लैरियर्स फॉर्म। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 ओवर ए प्लस बी। सिमिलरली यहां से भी क्या टाइप 1 तो नहीं है, टाइप 2 एप्लीकेबल है कि नहीं? टाइप 2 तभी एप्लीकेबल होगा वेन एवर यू विल सी पी एक्स प्लस क्यू वाई टर्म। तो पहले मैं इसकी ब्रैकेट खोल देता हूं पहले तो। फाइन, सो पी क्यू जेड विच इज एक्स पी स्क्वायर क्यू प्लस पी रेस्ट पावर 4 वाई क्यूब प्लस क्यू रेस्ट पावर 4, और जेड की वैल्यू निकालो। पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं, सो पी एक्स प्लस पी क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू प्लस वाई, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, फाइन, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी और क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी। फाइन, तो क्या आपको मिली है पी एक्स प्लस क्यू वाई टर्म? नहीं मिली। पी एक्स तो मिला लेकिन क्यू वाई नहीं मिला आपके पास। फाइन, तो इसका मतलब ये जो आपके पास है टाइप 2 मेथड से सॉल्व नहीं होगा ये। क्लियर? लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, फाइन, यहां पे मैंने वाई पी कर देता हूं मान लो। फाइन, अगर मैं वाई पी कर देता हूं, देन इफ आई ओपन दिस ब्रैकेट, अब आप इसमें करो पी क्यू से डिवाइड, एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस पी क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू एंड क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी। अब आपका ये बन गया क्लैरियर्स टाइप 2 मेथड। फाइन, मेक श्योर स्टूडेंट्स यहां पे अगर वाई क्यू है तो ये टाइप 2 से सॉल्व नहीं होगा। फाइन, तब हम देखेंगे टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 से कैसे सॉल्व होगा। फाइन, लेकिन अगर मैंने स्टेटमेंट को बदल दिया, वाई पी कर दिया, देन इट इज माई क्लैरियर्स इक्वेशन। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए एक्स प्लस बी वाई एंड सो। क्लियर बच्चों? हमेशा याद रखो एग्जामिनेशन में आपको कोई बताएगा नहीं कि कौन सी टाइप से सॉल्व करना है। चलिए टाइप 1 फिर से एप्लीकेबल नहीं है। पहले इक्वेशन के लिए आप जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी एक्स, देखते हैं क्या टाइप 2 एप्लीकेबल होगा। 1 प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यू, यस यहां से हो जाएगा ना। P will be Z will be px plus qy plus 1 plus q square divided by 2q. Yes, that is my Clairaut's form. Fine. तो जैसे Clairaut's form के लिए px plus qy के साथ साथ जो बाकी रह गया, फाइन, और वो सिर्फ और सिर्फ p और q पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। फाइन, सो दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या इस सेकंड मेथड है आपके पास क्लैरियस फॉर्म का? यस है, बिल्कुल। तुम पी एक्स प्लस क्यू वाई को राइट साइड पे ले जाओगे एंड देन यू कैन गेट दी एज दी कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, नाउ यू कैन सी द सॉल्व द पीडी। अब इस पे ये नहीं बोला, हर अभी तक तो सब में वो कंप्लीट इंटीग्रल पूछ रहा था। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द कंप्लीट, दैट मीन्स योर टारगेट इज टू फाइंड दी 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस और 3 डिफरेंट इंटीग्रल्स। फाइन, तो सबसे पहले टाइप 1 इज नॉट एप्लीकेबल, टाइप 2 इज ए क्लैरियस फॉर्म, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई वेयर c इज माई इज अ नॉन कांस्टेंट। सिंगुलर कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू a एंड b पार्शियली। तो a के साथ करेंगे x 0, c डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a के साथ करेंगे तो 2a आ जाएगा। सो ये 2 मेरा कैंसिल हो गया यहीं से। फाइन, सिमिलरली मैं y के साथ b के साथ करूंगा तो y प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? आपका टारगेट क्या है? योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइन, सिंगुलर सॉल्यूशन का मतलब z की वैल्यू निकालनी है विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम a एंड b।
तो जैसे मैं ए और बी की वैल्यू निकाल दूंगा वो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा, दैट आई कैन गेट दिस सॉल्यूशन। क्लियर? तो कैसे निकाला जाएगा? देखो इसमें से क्या निकाल सकता हूं मैं, इसमें से मैं रूट 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू निकाल देता हूं, दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय एक्स। सिमिलरली दूसरे में से, और फाइन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, फाइन यू कैन स्केयरिंग एंड एडिंग, फाइन। तो कितना हो गया लेफ्ट साइड पे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, सी स्क्र इज ए कॉमन, दैट विल बी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमन, फाइन। इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो दैट विल बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र, बाकी क्या रह गया सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, फाइन, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो यहां से ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई, यू कैन डिवाइड देम, फाइन, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये वैल्यू आप यहाँ पे फिल कर दो, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए विल बी माइनस एक्स ओवर सी 1 प्लस ये चीज, तो जैसे 1 प्लस करोगे 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। नाउ यू कैन टेक द एलसीएम, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र विल बी कैंसल, न्यूमिनेटर में रह गया सी, सी से ये सी भी कट जाएगा, तो दैट विल बी ए इज इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र। सिमिलरली आप यहाँ y में फिल कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द b। c कांस्टेंट नहीं है बच्चों, c तो आपको गिवन स्टेटमेंट में गिवन है ऑलरेडी, फाइन। तो जैसे आपको a और b की वैल्यू आ गई, यू कैन सब्सटीट्यूट इन द गिवन इक्वेशन नंबर 1, a x इंटू एक्स इज एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस ऑफ द b y दैट्स वाई स्क्र प्लस c इंटू रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर प्लस वाई स्क्र ओवर ये चीज, फाइन। तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो ये चीज आ जाएगी। नाउ अगेन यू कैन टेक द एलसीएम, यू विल गेट सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, फाइन। तो कितना बन जाएगा ये, दैट विल बी सी स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और you can scaling on the both side, you will get x square plus y square plus z square which is equal to c square. That is the equation of the sphere. क्योंकि इन्वेल्प है ना आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आपके पास क्या हो जाएगी, इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों लेक्चर, फाइन। और अगर आपको जनरल इंटीग्रल बोला जाए, यू कैन टेक b is equal to 5 of a, substitute in the equation number 1, fine, take the partial derivative with respect to a, so x plus phi dash of a plus c over twice root, और इसके साथ डेरिवेटिव कर दो, a स्क्वायर का 2 of a इस 2 phi of a into phi dash of a, ये 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा and you will get the equation number 3, and the general integral is obtained by eliminating the value of the a from the equation number 2 and equation number 3, फाइन। क्योंकि आपके पास फाई तो गिवन नहीं है ना, क्या फंक्शन है, साइन है, कोसाइन है, लोगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट है, क्या है, अगर वो गिवन होगा देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एज वेल। क्लियर? सो उम्मीद करता हूं आप ये सब क्वेश्चंस आप सेल्फ सॉल्व कर पाओगे, एंड यू कैन डू इट बाय ओन एंड वेरीफाई योर आंसर्स। यू कैन फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशंस, फाइंड एसएस डिफाइंड फॉर द सिंगुलर, सीआई फॉर द कंप्लीट इंटीग्रल्स, और आप कमेंट करके बताइए आपके कितने के आंसर सही हैं इस वीडियो के हिसाब से, fine. So I will upload the next part, that is a type 3rd, in the very soon. Till then you can share this video with your friends. Don't forget to like and comment on the videos. Happy learning students, best of luck.